Hi. Okay. Wow, what an honor to be with two legends. Uh, People you don't have to introduce. So that's really nice. Um, where do I start? Rishabh, I have seen right from the trailer of Kantara and to now the reviews. You know, people have not said it's a good movie. People have said like, what was that? In a very good way. Like in a mind blown, never seen a movie like this before. So congratulations for doing one of the best films, one of the best Indian films. And Anupam Kher sir, Wikipedia can't keep up. Last is 530 films and I'm sure I'm wrong. Is it more? 532 now. See, please update the guy who does Wikipedia. So this is like today's session. It's like really, really valuable. It is supposed to be on North versus South and something, but we'll do whatever we want. Basically, too late. But I have some interesting data. This may be useful if you ever have a quiz. So India has a lot of regional cinema, you know, not just South and North. So I saw what some of the biggest movies are. And then we can maybe understand what is this whole South thing now, okay? So Assamese cinema is there. The biggest movie there is Ratnakar, 9 crores business. Bengali, there's a movie called Amazon Obijan, 48 crores. Bhojpuri, the biggest movie in Bhojpuri is 9 crore business. It's called Sasura Bada Paise Wala, which now I really want to see. In Gujarati, it's 60 crores. In Marathi, it's 110 Sairat. In Odia, it's 4 crores. In Punjabi, 57 crore. Carry on Jat 2, of course. Now let's come to the South. Are you ready? Kantara right now, still going, 400 crores. KGF, the only, like your sandwich between the two. The first one, 250 crores. The second one, I'm not making this up, 1,200 crores. It's obviously different from the Sasural or Sasur Bada, whatever. But Tamil 2.0, the film called 2.0, 655 crores. Ponniyin Selvan, I'm sure I'm murdering all the pronunciations here, but sorry. 480 crores so far. In Telugu, RRR 1200 crores. Bahubali 1000 plus 600. Like it's a lot, man. Saho 439, Pushpa 355, even Malayalam Lucifer at 200 crores. So this South is something else only, right? And of course Hindi I'm not mentioning, but you may have heard of the films Dangal, Bajrangi Bhaijaan, Secret Superstar, PK, Sultan. Now what is interesting is the Hindi ones are all pre-COVID. And the South ones are now, like, and some pre-COVID, some now. It's truly amazing what's going on. Let me go to Anupam sir first. Then we go to the guy who's from there. Sir, what is happening? Well, you are coining them as South Indian films and North Indian films. I will say that they are Indian films. I am equally proud of the films that are being made in the south part of India as they are Indian. So as long as they are Indian films that we are sharing the money, it's fantastic. Sir, मैं तो credit ले रहा हूँ. Indian film है. मैंने तो South Indian से शादी की है और taxes तो एक ही pool में जा रहे हैं. ससुराल वाले आए आप उनको खुश करने के लिए साउथ को और नॉर्थ को डिवाइड कर रहे हैं. There's no divide. There's actually no divide. I'm not asking you. I genuinely believe that this is a divide that is sort of being created. अब आप जापान की कोई फिल्म या जर्मनी की कोई फिल्म या पोलैंड की कोई फिल्म थोड़ा कहते हैं कि साउथ पोलैंड पोलिश फिल्म ने इतना बिजनेस किया, नॉर्थ पोलिश फिल्म ने इतना बिजनेस किया. We are a lucky country to have 22 official regional languages and 3,000 dialects that we are there. We are lucky to have that. But to sort of say that, and I genuinely believe it, I'm not trying to defend anything, I genuinely believe that this is Indian film industry and our brothers and sisters in regional film are making this much of money and we are making this much of money. They are much more cinema oriented
city part of the world, or in India, and in Indian Hindi film has to cater to different languages. Whereas, but now they have broken that barrier. All the film that you talked about, his film started with, I think, 50 lakhs of rupees, and it has reached 83 crores in Hindi, which is phenomenal. And so that divide has been broken post-COVID. So that's what I think is the greatest achievement of cinema in India. Definitely. Good answer. And of course, they are all Indian films, but I told you the numbers. Other regional cinemas, 9 crores, 15 crores, 10 crores. South, thousands of crores. Something is being done right there, including you. You've also done something right. But as an observer, since we are at a summit where we discuss these things, we can discuss. And I totally agree with you that South, North thing is not. I'll tell you, mere khayal se, I have a guess on why that thing has come. Long time ago, there was only Doordarshan. On Sunday, there used to be a Hindi movie, prime slot. And on Thursday, there should be another movie. It was called regional film. So when in doubt, blame the previous governments. But that is the classification that was done by the government. Regional film, and Sunday is the main big show. Maybe it's that legacy, but clearly it's no longer like it's huge, South. So what is happening there? How do you think the South got its groove right? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ आई थिंक लोग नए नए कहानी को ढूंढ रहे हैं और आप पोस्ट कोविड बोल रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कोविड के बाद जो लॉकडाउन के बाद जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोग इतने वर्ल्ड सिनेमा या रीजनल फिल्म्स को देखने को मिला आई थिंक लोग उसके बाद जो लैंग्वेज का जो बैरियर था वो हटा के जो इंडियन सेंटिमेंट हमारा जो रूटेड कहानियां वो देखने का ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वैसा तो हमारा इंडियन सिनेमा में बहुत सारे जॉनर में हम लोग फिल्म करते हैं कहानियां बताते हैं उसमें भी ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न या हॉलीवुड फिल्म्स और दूसरे कंट्री का जो एक्शन फिल्म्स आता था वैसा कुछ इन्फ्लुएंस था ये मैं बता रहा हूं शायद अर्ली 90 से इस तरफ देखा तो लेकिन लोगों को क्या चाहिए था वो अभी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो वेस्टर्न फिल्म में हो उधर नहीं मिलेगा जो रूटेड कहानी जो मिलता है हमारा जो गांव में जो हमको क्या बिलीव करते हैं क्या क्या मतलब अगर मैं अभी कांतारा में मैं मेरा गांव का कहानी लेके आके बताया आई थॉट आई ऑलवेज बिलीव मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल तो वो एक रीजनल कंटेंट लेके आया तो जो इसमें जो हमारा जो रिचुअल्स हम बताए और हम दैवाराधना के बारे में बताए ये मैं सोचा भारत एक देश है एक कृषि से एक जुड़ा हुआ एक देश है हमारा पूरा कनेक्शन उधर से रहता है हमारा जो लाइफस्टाइल है वे ऑफ लाइफ है सब उधर से आता है करके सो कांतारा में क्या बताया था मैं वो भारत का हर गांव में वैसा कुछ बिलीफ है वैसा कुछ शक्ति को मानते हैं लोग वो हमारा सेंटिमेंट भी है हमारा इमोशन भी है शायद वैसा कुछ एलिमेंट्स ऐसा कुछ कंटेंट कनेक्ट हो रहा है ज्यादा सो इसलिए ग्लोबली सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी साउथ का चल रहा है नॉर्थ का नहीं चल रहा है ऐसा कुछ ऐसा नहीं है हिंदी फिल्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को कश्मीर फाइल्स को क्या बोलते हैं हम In fact, I was going to talk about that. Yes. So वो सेम टाइम दिस ईयर रिलीज हुआ कि वो कनाडा में इतना अच्छा कलेक्शन किया बहुत सारे लोग देखा है उधर जो कश्मीर में क्या हुआ जो कर्नाटक में सब लोग को पता नहीं लेकिन जो इमोशंस जो कनेक्ट हुआ उधर जो वो ज्यादा चाहिए लोगों को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद Also, I think ratio-wise, thanks for mentioning Kashmir Files. Ratio-wise, Kashmir Files का बजट था 17 करोड़ रुपया उसने बिजनेस किया 350 करोड़ का आई थिंक Here also you match. इनका भी 16 करोड़ था और इन्होंने भी करीब से तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कोविड में और लॉकडाउन में इंसान जो था लोग थे वो अपने आप से जूझ रहे थे परेशान थे किसी ने किसी को खोया किसी ने तो एक बदलाव आया अंदर से
और उसके बाद फिर उनको लगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम, मतलब किरण जो है वो कोरियन फिल्में भी देखती हैं, सीरीज देखती हैं, मलयालम सिनेमा देखती हैं, तेलुगु सिनेमा देखती हैं, तो दे अंडरस्टूड दैट देयर इज अनदर सिनेमा, अनदर टैलेंटेड सेट ऑफ पीपल, तो वो सब पैन इंडिया हो गया। और उसके बाद जब फिल्में लगी तो उनको कहीं ना कहीं ऑडियंस को फेकनेस से थोड़ी सी एलर्जी हुई, एनीथिंग दैट इज फेक, बिकॉज दे वेंट थ्रू सो मच ऑफ change. People went through so much of change. One small virus made the difference. But people went through this whole turmoil inside. So they didn't want anything. I think this is what my analysis is, that they don't want anything which is fake. What is real? What has happened over here is there is a person who is making a real film. It's rooted. It's Indian. Its emotions are believable. तो कोई भी चीज जो है वो थोड़ी सी जरा प्रिटेंशियस है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो फिगर्स के अलावा, मतलब जो आप फिगर्स बता रहे थे शुरुआत में, उसके अलावा एक जो चेंज आया ऑडियंस में, दैट इज अ वेलकम चेंज। वरना 3 फिल्में जो मेरी आपने गिनाई नहीं शायद, पर मैं गिनाना चाहता हूं। कश्मीर फाइल्स मार्च में आई, एक मैंने फिल्म की गेस्ट अपीयरेंस है उसमें, कार्तिकेय 2। कार्तिकेय 2 में मेरे 2 सीन्स हैं मुश्किल से, मगर वो भी 50 लाख रुपए से शुरू हुई थी हिंदी सिनेमा में, और उसके गई वो 25 लाख, तो टोटल उसने बनाया 130 करोड़। कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ऊंचाई, एक 365 प्लस के लोगों की कहानी है जो एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हैं। इट इज नॉट ए रेगुलर हिंदी फिल्म। सो दैट मीन्स द सक्सेस ऑफ दीज फिल्म्स प्रूव्स that the audience does not want a cliche film, whether it is in Hindi or whether it is in any other language. I think that has made a difference. So इसका मतलब है कि what जो उभर के आ रहा है कि it's not so much the language, of course, but the story itself, the content itself, जो pretentious नहीं होना चाहिए, fake नहीं होना चाहिए। Very interestingly you mentioned budgets, तो चलिए अभी बजट की बात कर लेते हैं। सर, जितने बजट आपकी कश्मीर फाइल्स का था या कंतारा का था, इतना तो एक हीरो की फीस का जीएसटी नहीं होता है हिंदी में। नो, आई एम नॉट किडिंग। नहीं, अब एकदम से 100 करोड़ फी, आपके शब्दों के चयन पे मैं हंसा, अच्छा लगा मुझे। ओके, 100 करोड़ एक अगर स्टार की फीस है, विच इज हैपेंड, आई मीन वी डोंट हैव टू गो हु, इट्स क्वाइट कॉमन। उसका जीएसटी 18% है सर, 18% तो जीएसटी है उसका। अब आप कह रहे हो आपने 16, am I right? 16 crores is the number? Yeah, 17 crores में आपने पूरी पिक्चर बना ली। मैंने सुना है कनाडा का रिलीज मिलके, कैमरा का वो कनाडा में जो किए हम लोग, हाँ, वो सब मिला के, वो उधर हमारा रिलीज का खर्चा मिलके वो 16 करोड़। और कई लोगों के बजट ऐसे होते हैं। सर, मैं एक YouTube चैनल चलाता हूँ, उसमें मैंने किसी को बुलाना चाहा, उन्होंने कहा कि मेरी कंगी करने के लिए और ये करने के लिए 11 लोग आएंगे। उन सब ये जोक मेरे सामने मारना था, मतलब आप भी ले आओ सर 5-6। आपको कंगी वाला जोक मेरे सामने बोलना था। अरे अरे, वो तो मैंने सोचा ही नहीं सर, आपने आप सोचा। तो बियॉन्ड कंगी हो। पर और मैं देख रहा हूँ कि 90% लोग यहाँ पर बिना कंगी के वाले बैठे हुए हैं। नो, सो आई एम जस्ट But I agree with you. You are right. मेकअप, नॉट जस्ट कंगी, इट वाज मेकअप, इट वाज दिस, कोई पानी लाएगा, मिनरल वाटर होना चाहिए। मैंने सुना है लोगों की 4-4 वैनिटी वैन होती हैं। दीज आर नॉट, सो दीज आर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स विच आर सो, और एक एंड पे आजकल ऐसे भी कंटेंट बन रहा है, 15 करोड़ में आपने पूरी पिक्चर बना ली। यूट्यूबर्स तो बेचारे और भी कम में बनाते हैं, सम ओटीटी। सो व्हाट इज इट लाइक, क्या ये बॉलीवुड कोई, जो बॉम्बे है, हम भी वहीं रहते हैं मुंबई में, वो कोई और ही दुनिया में चल रहा है? या आप लोग कैसे, मतलब वेयर, हाउ कैन यू मेक अ फिल्म फॉर 15 करोड़ एंड दे आर मेकिंग फिल्म फॉर 400 करोड़, और उनकी नहीं चल रही है और आपकी चल रही है? ये कैसे कैसे रहा है? व्हाट इज दिस? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 चली, बहुत अच्छी। संजय लीला बंसाली की फिल्म विद आलिया चली, बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं कि बड़े बजट की फिल्में चल नहीं रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को एंटाइटलमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। बताइए, एंटाइटलमेंट किसी को समझा? मतलब कि हम आपको बताते हैं कि अभी फिल्म कैसे बनती है, हम आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए फिल्मों में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। दे आर इंटरेस्टेड, दे स्पेंड देयर मनी। ऑल्सो चेंज होता गया ना। पहले तो हमारे पास, हम सादे फिल्में देखने चले जाते थे, फिर डिफरेंट साधन हुए,
आज लोगों के पास एंटरटेनमेंट के कितने साधन हैं। आप मॉल में चले जाइए, खाना खाने की जगहें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वगैरह वगैरह कितने सारे हैं। तो नाउ दे डोंट लाइक anything, I'll go back to the same thing, anything which smells of fakeism, if there is a word like that. They just don't understand that. They will rather go to see a Kantara, they will rather go to see a Triple R, they will rather go and see some other film. American films, क्या business करती हैं यहाँ पर? मतलब they are also equally now our competitors. तो survival तो करना ही पड़ेगा ना। पर मैं अपने 38 साल में मुझे 532 फिल्में की हैं। बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोग आए, बट सिंसेरिटी का और हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं ये कोई ज्ञान की बातें नहीं कर रहा। तो ऐसे लगता है कि हम चलो अगर पैसे से बनानी है फिल्म, बट दिस इज, मुझे लगता है ये अमृत मंथन है, ये चर्निंग है। अमृत मंथन का पीरियड अच्छा होता है, इसके बाद जो आगे फिल्में बनेंगी वो शायद अलग बनेंगी, डिफरेंट बनेगी। कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना। You see, when you talk about, जैसे हम लोगों में क्या कमजोरी है, आपको दुनिया का कोई भी सिनेमा आप में पीछे वुड नहीं लगा होगा। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने आप को बॉलीवुड बोलेंगे। आप भी बार बार बॉलीवुड बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जापानीज फिल्म को जापानीज वुड बोलते हैं, इटालियन को इटालियन वुड बोलते हैं, पर even the regional films are agreed to happy with Collywood, Tollywood. This is nonsense. ये हमारी कमजोरी है कि हम बड़े खुश हैं कि हमारे को बॉलीवुड बोलते हैं। अरे ये हिंदी फिल्म सिनेमा है या इंडियन सिनेमा है, हम खुश हैं इस बात से। सो आई थिंक ये एक हमारी कमजोरी है जो इसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है ऋषभ, सर कीप्स टॉकिंग अबाउट द फेकनेस ऑफ Indian in today's conversation in fakeness of Hindi film industry. I will not say Bollywood now. Just easy था सर, इसलिए बोल दिया, ऐसे कोई हो रही। ठीक है, तो they talk about fakeness. नहीं, I'm not you're talking not about, alone. no, I am part of Hindi film industry and whatever I am today is thanks to them. So I'm not criticizing them. You asked me a question that बड़ी फिल्में क्यों नहीं चलती हैं। मैंने ये कहा कि कोविड के समय में ऑडियंस में एक बदलाव आया है। कोविड के बाद अब उनको लगता है कि यार बड़ी भी फिल्म है तो उसमें कहीं ना कहीं दिल से निकली और दिल तक पहुंचे, ऐसा होना चाहिए। ये मेरी क्लैरिटी है। अदरवाइज आई हैव डन द मोस्ट रिडिकुलस रोल्स विद जॉय एंड पैशन। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब मैंने दिल फिल्म में मक्खी एक्चुअली निकाली थी, और मतलब मक्खी चूस के लिए, बट हजारों लोग बिलीव करते हैं, करोड़ों लोग बिलीव करते हैं। सो आई एम नॉट टेकिंग अवे द जॉय एंड द प्राइड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई दैट मस्ट हैव हैपेंड नाउ, दैट्स इट। हाँ, sir also mentioned कि now there are a lot of options. People can watch OTT, of course this television. Even you just open your phones, you can see YouTube shorts, Instagram reels. You know, it's very easy to entertain yourself now. So films require a lot of effort. You have to go to the theater now. There was a time there was nothing like cinema, right? But today, do you feel that there's a pressure because of that? That you know, youngsters will just watch reels on their phone all day long. सही है, क्योंकि अभी आज बेस्ड ऑन सिनेमा कौन अपडेटेड कौन है? मेरा हिसाब से ऑडियंस है, वो ज्यादा अपडेटेड है। जो अपडेटेड कौन नहीं है, तो आई थिंक हम राइटर्स और फिल्म मेकर्स, क्योंकि आज क्या रिलीज हुआ है, शायद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, थिएटर हो, वो अभी अभी देख के आए हैं ऑडियंस। लेकिन हम लोग 1 साल का एक पुराना कहानी अभी बता रहे हैं, सो शायद वो 2 साल 3 साल भी लगेगा। तो ऐसा एक कहानी हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हम कुछ दूसरा वेस्टर्न फिल्म्स, और वही मैं कह रहा था, उधर से इन्फ्लुएंस होके हम लोग कुछ फिल्म का कुछ फॉर्मेट होता है ना, वही फॉर्मेट में हम लोग कहानी बताया। वैसा कुछ कहानियां, वैसा कुछ जॉनर का जो फिल्म उन लोगों को ओरिजिनली हॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री से मिलता है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं, मैं अगर जाके मेरा गांव का एक कहानी लेके आया, वो आपका कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म किधर भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मेरा गांव में रहता है, तो मैं राइटर बन गया, तो मैं लेके आके आपको पेश कर सकता हूँ। सो ये शायद अपडेट होना चाहिए, जो कहानियां ज्यादा ओरिजिनल रूटेड लेके आए तो वो ज्यादा कनेक्ट होता है। सो वो कनेक्शन थोड़ा मिस हो गया, तो ऐसा शायद अनुपम जी वही
फ्रेम कर रहे थे. कि you cannot, you have to give something unique, you have to give, डेफिनेटली इट्स प्रेशर तो है 100% है. अभी एक इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के लोग अभी कैसे जज करते हैं, एडिट पेस ज्यादा होना चाहिए, ये म्यूजिक ऐसा ये ठीक नहीं है, और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा रहना चाहिए था, और परफॉर्मेंस भी ये सीन में हर सीन को अभी मतलब ऐसा रिव्यूज आता है, हर लोग अभी क्रिटिक्स है. नहीं, आई थिंक ओरिजिनल जो है ना वो हमेशा चलेगा. हाँ जी, ओरिजिनल. अभी हम लोग 5 स्टार की जगह कभी कहते हैं कि ढाबे पे चल के खाना खाते हैं, इसी स्वयं रोटी से हम वैसा कुछ खाते हैं. तो ओरिजिनल जब है, जब तक ओरिजिनल है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगा. ओरिजिनल गाने ले लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए वो आएगा. वो याद है वो गंगनम गाना क्या हिट हुआ था, गंगम स्टाइल. मतलब पागल हो गए थे लोग, जो भी आदमी देखे टांग हिला के ऐसे ऐसे हिलाता रहता था. आज कहाँ है वो. सो ये जो आप पानी में जो बुदबुदे होते हैं उनकी बात कर रहे हो, बट आप शुरू से ले लीजिए, बिमल रॉय से, बाकी से, आपको मनमोहन देसाई वगैरह से जितने भी ले लीजिए, सूरज बरजात्या को ले लीजिए. इन लोगों ने जब फिल्में जब भी बनाई है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कमाल की ओरिजिनल थी 90s में. दैट वाज द चेंज दैट ब्रॉट इन, कि हीरो जो है वो बोलता है कि मैं लड़की के फादर को मना के तब तुमको लेकर जाऊंगा. दैट थॉट हैड नेवर कम बिफोर दैट. पहले तो होता था मैं तेरे को उठा के ले जाऊंगा, मैं घोड़े पे ले जाऊंगा, गाड़ी में ले जाऊंगा, भाग जाऊंगा. दैट वाज द फर्स्ट टाइम द शाहरुख खान टेल्स द गर्ल काजोल कि मैं तब तक नहीं लेके तेरे को जाऊंगा. नो, दैट थॉट वाज वेरी गुड. सो सिमिलरली द प्रोसेस चेंज, बट द ओरिजिनलिटी ऑलवेज हैज रिमेन्ड. शोले फिल्म पहले 3 हफ्ते चली ही नहीं थी. दिस इज मिस्टर रमेश सिप्पीज ओन अकाउंट, नहीं चली थी. एंड देन इट बिकेम द बिगेस्ट हिट. So whenever you will remember the classical hits or not so big hits, they will be the original films in every era. Yes, definitely. आपकी खुद की लिखी हुई 3 Idiot, मतलब वो अलग बात है कि वो तो उन्होंने आपको क्रेडिट नहीं दिया. दिया सर, हमने ले लिया छीन छान के. छीन. बट छीनना देखिए, पड़ता सर. नहीं, अच्छा किया आपने छीना, बिल्कुल करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. बट वो देखिए, इवन 2 states, Yes, ओरिजिनल स्टोरीज ना, सो इट वर्कड बिकॉज ऑफ दैट. yes. In fact, let's talk about not the controversies that have happened, but एक और चीज नहीं, मैंने मैंने तो दिल से आपकी तारीफ नहीं करने आई के लिए नो बोला सर, था. आप तो फिर मेरे मुझे अपने सडन हो. लगा मैंने कहीं. एंड एक्चुअली यू कैन वॉच माय इंटरव्यू विद सर ऑन माय यूट्यूब. यू डन अ 2-hour इंटरव्यू सेपरेटली, वो तो कोई अलग बात है. बट बिकॉज यू मेंशन दिस, एक और चीज मैंने नोट किया है कि द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई एम नॉट सेइंग बॉलीवुड, ओके, So happy हाँ. that I brought it up and Times Now के इस समिट में हमने सडनली बॉलीवुड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या ठीक है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बना दिया. इसके लिए एक बार तो और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि प्लीज इट्स लाइक संदीप आपका नाम यहाँ है, अमेरिका में जाके आप अपना नाम सैंडी रख लेते हो और खुश होते हैं. आई एम सैंडी फ्रॉम पटियाला. सर कुछ लोग यहीं रख लेते हैं, कुछ लोग यहीं पे सैंडी रख लेते हैं. हाँ, वो फिर भी है. तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलिए, So, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. so सॉरी. sir, the Hindi film industry, that is, अब उसको इतना प्यार नहीं मिल रहा है. ट्विटर पे अगर आप देखो तो काफी बॉयकॉट के ट्रेंड चलते रहते हैं. Your industry gets a like lot of love. Kannada film industry, Tamil, all these get a lot of love. The films, some Hindi films get love, some Hindi films don't get love. मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ. जो पूरे उस कलाकार हैं, और जबकि बहुत लोग काम करते हैं और बहुत दिल से काम करते हैं, लेकिन somehow एक बॉयकॉट, एक होता है कि चलो आपकी फिल्म नहीं पसंद आई, हम नहीं देखेंगे, पर एक ये जो नेगेटिव प्रीडिस्पोजिशन हो गया, मेरे ख्याल से सुशांत की जाने के बाद उससे हुआ है, या मे बी इट हैज हैपेंड सम अदर रीजन. और कई बार पॉलिटिकली भी माना ऐसे आ जाता है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं. अभी जैसे एक हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये रिचा चड्ढा ने कुछ बोल दिया, मेरे को तो खैर समझ भी नहीं आया क्या बोला उसने ठीक से, कि एंड नहीं, आई थिंक यू हैव बीन डिप्लोमेटिक. I'm not being आपको Okay, आपको मैं समझ में आया. हाउ कैन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि उसने, एक आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाके पीओके में जा सकते हैं अगर हमको ऑर्डर मिल जाए, और उसके बारे में कोई लिखता है गलवान सेज हेलो. या मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सिंग, मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज आई एम शॉक्ड कि कोई ऐसे कैसे बोल बुनियादी सकता. तौर पे गलत है, वो तो बुनियादी तौर पे गलत है. एज ए पर्सन आई एम श्योर शी इज ए नाइस पर्सन. एज ए पर्सन आई एम श्योर शी इज ए वेरी फाइन एक्ट्रेस. आई हैव सीन 1 or 2 वर्क, बट टू से समथिंग लाइक दिस, ये तो बोलना पड़ेगा कि गलत है.
क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे ये गलत है तो फिर दुख है। पर ये लोग कहां से, मतलब ये थॉट प्रोसेस कहां से रहा है? मतलब ये फिरकी लेने के लिए बोला गया था आपको लगता है कि क्यों? मतलब शी इज नॉट अलोन, देयर आर मेनी हु हैव डन सिमिलर थिंग्स। सो मैं जनरल इशू की बात कर रहा हूं। उसने अपोलोजाइज भी कर दिया है, तो चलिए उसने माफी मांग ली है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से और फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट दिस चालू हो जाता है। तो देखिए मेरे हिसाब से पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया वर अंडरडॉग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को सबने खुदा बना के रखा था कि अरे ये हम बहुत कमाल के हैं। मतलब ये बहुत था, जिस आप एंटाइटलमेंट की बात करते थे ना, अलग अलग उनको नाम देना, नाम तो भी साउथ में भी दिए जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज ब्रोकन बाय my friends from South, and broken on the basis of talent, broken on the basis of work, broken on the basis of the kind of work they are doing, and we should embrace that, we should applaud it. जहां तक आप बॉयकॉट वगैरह की बात करते हैं, किसी के बॉयकॉट लिखने से कुछ नहीं होता अगर फिल्म अच्छी है। फिल्म अच्छी है, इन्होंने आपको बताया कि यार मैंने फिल्म देखी, आप थोड़ा पहले जाते हो ट्विटर ट्रेंड पे, ने ट्विटर पे क्या लिखा हुआ है, हाँ मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इधर कल क्या ट्रेंड थी, आज से 2 घंटे पहले क्या ट्रेंड थी, आपको पता नहीं होगा। ये तो कहने की बातें हैं, बट उसकी वजह से पिक्चर लोग देखने नहीं जाते, ये हो ही नहीं सकता। कश्मीर फाइल्स को हर रोज कोई ना कोई बोलता था, यहां पर बैठे विधानसभा में बोलते थे इनको यूट्यूब में दिखा देना चाहिए, मतलब YouTube में दिखा देना चाहिए। It was the most ridiculous statement made by anybody. How can somebody who is nominated, who is chosen, elected by people of this city, talk about the tragedy of the genocide of Kashmiri Hindus and those 5 lakhs people being thrown out of their house in one night on 19th of January 1999 and make mockery of that? उसके बावजूद भी 350 करोड़ का बिजनेस किया कि नहीं किया उसने? बिल्कुल किया सर। बिजनेस अलग बात है, उस फिल्म ने हमेशा के लिए दिल में जगह बना ली लोगों। दिल में जगह बनाई है उसको। मतलब मैं जहां भी जाता हूं, मैं मतलब जो प्यार मुझे उस फिल्म से मिला, प्यार कह रहा हूं मैं, और वो क्यों बनी हिट हुई मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये इन इंडियन सिनेमा आई वुड लाइक टू से दैट फिल्म कश्मीर फाइल्स विल बी टॉक्ड अबाउट cinema before Kashmir Files and cinema after Kashmir Files. Wow. And based on the brilliance of the film, based on क्यों इतनी अच्छी लगी, लोगों को पता ही नहीं था ये ट्रेजेडी हुई है। सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट। लोगों को पता ही नहीं था ट्रेजेडी हुई। भाई साहब कहां जा रहे हो आप? भैया जी बैठो ना, अभी 2 मिनट, अभी आए हो तो बैठो। आपका दिल कब जब करे, आप कभी आ रहे हो तो कभी दिल करे उठ के जा रहे हो। हिलना मना है। अब आप, और वो भी फ्रंट रो पे 2 एक्टर 1 राइटर बात कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस जा रही है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे दोस्त। थोड़ी देर रोक लो, 10 मिनट बाद चले जाना। नहीं सर, बहुतों ने रोक रखा हुआ। कोई चीज अरेंजमेंट आप भूल जाइए, सारे परेशानियां भूल जाइए, यहाँ पर बात करिए, सुनिए हमारी बात ध्यान से, ज्ञान की बात सुनिए। ऋषभ क्या सर आप भी? ऋषभ, ये जो व्हाट वी स्पोक अबाउट जस्ट नाउ कि यू नो समटाइम्स सम एक्टर्स और इवन अदर पीपल इन द इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री विल मेक सम पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दे गेट इनटू ट्रबल। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माय नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पीपल, डज इट हैपन इन कनाडा आल्सो? ये बाइकआउट कौन बता रहा है? ऑडियंस। हाँ, हमारे कनाडा इंडस्ट्री में एक लेजेंडरी एक्टर थे, उसका नाम है डॉक्टर राजकुमार। वो हर बार कहते थे अभिमानी देवरुगुलु, मतलब ऑडियंस जो है भगवान होते हैं करके। सो ऐसे देखते थे, मतलब ऑडियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, उनका जो सेंटिमेंट है, वो उनका जो बिलीफ है, उसके ऊपर ही उनका काम रहता था। उसको हर्ट नहीं करते थे थ्रू देयर सिनेमा। शायद ऑडियंस का पर्सपेक्टिव से वो चल रहा है। यस, आई वांट टू आस्क यू बट कि ये कनाडा इंडस्ट्री में भी ये होता है, जो लोकल कर्नाटका का पॉलिटिक्स है, वो कई बार एक्टर्स, फिल्म मेकर्स उसमें फंस जाते हैं। वन फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट,
And second, do you think you could make a very political, almost polarizing film, but still a very good film like Kashmir Files? Like he himself said, कि even in Parliament हिल गई उससे. Do you think you could take on a project like that? Sorry, this is the mic. हेलो. डेफिनेटली बहुत सारे फिल्म्स इसमें भी मैं कांतारा में भी जो 90s में क्या कास्ट सिस्टम था, ये अपर कम्युनिटी लोअर कम्युनिटी, इसके बारे में भी मैं बताया था. जो उस समय जो अनटचेबिलिटी ये सब क्या क्या होता था वो सब मैं बताया फिल्म में. लेकिन बहुत ओपनली लिया है फिल्म में. लोग फिल्म को फिल्म जैसा देख रहे हैं. सेम टाइम हमको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए सोसाइटी को, क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या सही है क्या गलत है. जो किसी का भावना को हम हर्ट नहीं कर सकते ना, वो भी मन में रख के हम काम किया तो बहुत अच्छा रहता है. तो उधर तो ज्यादा ऐसा मैं सुना नहीं, मतलब ये बाइकआउट रिकॉर्ड कुछ कन्नड़ा इंडस्ट्री में तो वो नहीं है. Okay. सर ये एक इतनी सिंपल, इतने like some of the biggest film of the year both of them have had and they are so humble, पर एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक इमेज है बॉलीवुड, इसीलिए शायद बॉलीवुड बोला जाता है कि लोग पार्टीज करते हैं, ग्लैमर है, हवा में किसेस करते हैं. आप दोनों बिल्कुल वैसे नहीं लगते हो भी नहीं, मुझे पता है, आपका तो मुझे पता है, ऋषभ भी लग नहीं रहा, और हमने तो हैंग आउट किया हुआ है, हम तो ऐसे मतलब. तो ये क्या है, वो एक लोगों के माइंड में परसेप्शन है कि बॉलीवुड के लोग ऐसे पार्टियां करते हैं एंड लाइक दैट होल ग्लैमर कल्चर. बट व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यहाँ जितने लोग बैठे हैं पार्टियां नहीं करते हैं क्या? जितनी पार्टियां दिल्ली में होती हैं फार्म हाउसेस वगैरह में, उतनी तो पूरी बॉम्बे हिंदुस्तान में नहीं होती हैं. ओके. सो जितना खर्चा शादियों में यहाँ पर होता है, तो बॉलीवुड और या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या जो भी है, why shouldn't they celebrate the success of a film? Why shouldn't they have the parties? What is wrong in the having the parties? They've earned to do those parties. They earn to sort of work hard. They're larger than life. They work very hard. Let me first tell you that actors work day and night. And it is very easy for the audience to sit down now with their mobiles and in the first 5 minutes say, बकवास है. और मेरे मामा जी वाले ग्रुप में डाल देता हूँ, बकवास है देखना नहीं. चाचा जी वाले ग्रुप में डाल देता हूँ. बट ये परसेप्शन दिया जाता है कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं. सुबह 4 बजे निकलते हैं जी कुछ शूटिंग्स के लिए, और रात के 11 बजे तक काम होता है. एक के बाद एक शॉट. आपने जो मैंने इनसे पहला सवाल पूछा, मैं पहली बार इनको मिला, मैंने कहा आई थिंक इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म टू शूट कंटारा. वो जब जिन्होंने नहीं देखी है उनमें मैं भी हूं, मगर मैंने जो थोड़ा बहुत देखा, उन्होंने कहा मेरे लिए तो बहुत आसान था क्योंकि मेरे ही गांव में मैंने शूटिंग की थी, मगर जो बाहर से आए थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था. सो व्हाई शुड दे सेलिब्रेट लाइफ? एब्सोल्युटली, व्हाई शुड पीपल होल्ड इट अगेंस्ट देम? वी आर देयर एज पीपल. हमारा जॉब है फिल्में बनाना, और फिल्मों की वजह से अगर हमारे पोस्टर लगते हैं या हमको डिस्कशन किया जाता है. आज लास्ट सेशन हमारा क्यों रखा है? क्योंकि द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन. सर, जो कॉन्फिडेंस की गोलियां आप खा रहे हो ना, हाँ, वो मुझे जरूर देना. नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, जिंदगी मुझे की गोलियां चाहिए, खाई हुई हैं. ये मुझे चाहिए. जिंदगी के थप्पड़े हैं ये. हाँ. अब ये लास्ट रखते हैं, फिल्म वालों का रखते हैं, तो हाउस भरा हुआ, पीछे देखो सारे लोग बेजल खड़े हुए लाइन लगा के. बिकॉज सिनेमा इज द मोस्ट मैजिकल थिंग इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री के एक्टर्स जो हैं वो हमारी जिंदगी के, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. मैं अमेरिका में काम करता हूं. एक्टर्स आर वेरी गुड, दे आर नाइस, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. कभी आपने सुना है कि ब्रैड पिट के हेयर स्टाइल लगने शुरू हो गए? हमारे राजेश खन्ना जी के कुर्ते शुरू हो गए थे, राजेश खन्ना जी का स्टाइल शुरू हो गया था. मतलब इट्स सो अनबिलीवेबल. हम आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं. हम किसी के चाचा जी हैं, किसी के मामा जी हैं. हम आपके हैं कौन लगी थी? हम आपके हैं कौन ने डिसाइड किया कि शादियां कैसे होनी चाहिए, है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तानी शादी ऐसे होने लगी. अभी भी जो लहंगे लोग एनआरआई सारे आते हैं, वो गाने दिखा दिखा के ये वाला लहंगा चाहिए, वो वाला. हर शादी में बर्बाद कर दिया सबको कि लड़की वाले पूरे, मतलब कोरियोग्राफर्स. मेरी नीस है यहाँ पर, उनने शादियों में कितने लोगों को कोरियोग्राफ कराई है. कोरियोग्राफर बुलाए जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कि ये करेंगे, ये करना.
So why not? I think cinema is the best thing that has happened to this country also. Let's not take that away from them. सर पार्टी करने वालों पे गुस्सा उसी को आता है जिसको पार्टी में बुलाया नहीं जाता. नहीं सर, नहीं, मतलब fact ही है. मैंने बहुत पार्टीज नहीं, किया. अब मुझे लगता है कि मैं यार सेम बात होती है जैसे हर पार्टी में होते हैं. एक के बाद कॉन्वर्सेशन, दो के बाद कॉन्वर्सेशन डिफरेंट हो जाती है. बट आई एंजॉय पार्टीज. मेरे को ले जाया करो सर. मैंने जब इनको देखा धोती में और इसमें, मैंने कहा यार मैं सूट पहन के, लोगों को ऐसा ना लगे ये अमीर एक्टर है. पर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ. मेरी 3 पिक्चरें ब्लॉकबस्टर हुई हैं. मैं सूट क्यों ना पहन के आऊं? सर ये है कि ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है. सर मुझे तो इसमें मजा आता है सर. बहुत अच्छा है सर आपका. आप इसमें मेरे जैसे ही लग रहे हो. आपके चेहरे पे भी सक्सेस की चमक है, मेरे चेहरे पे भी सक्सेस है. Yes, sir. पर हम जब फेलियर भी होते हैं, मेरे चेहरे पे इतनी सक्सेस होती है. बिकॉज अगले साल मेरी शायद 3 पिक्चर नहीं चलेंगी. शायद इतना बड़ा मैं, शायद मुझे टाइम्स नाउ वाले नहीं बुलाएंगे. पर उससे जिंदगी रुक थोड़ा जाएगी. आई एम हैपनिंग फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज वॉट आई विल डिसाइड दैट. बट थैंक यू सौरभ, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर. इट्स ओके. आप ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में कॉन्फिडेंस की गोली ज्यादा खाइए. नहीं, अच्छी बात है. बस शांति से बात नहीं करो. नहीं, ये मैं आपसे बल्कि पूछना चाहता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर ये मोटिवेशन जोन में जा रहा है. पर क्योंकि इतने लोग हैं, ये कुछ सीखें कि यू सीम लाइक अ रियली हैप्पी पर्सन एंड फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड हाउ कैन अदर पीपल बी लाइक दिस? व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस? इसके बाद आप बोलना. मैं थोड़ा इसके बाद आई कम टू यू. बट नहीं, मैंने आपकी कितनी फिल्में की हैं आपने ऋषभ टोटल? नहीं, ये मेरा 4th फिल्म है एज अ डायरेक्टर. अब मैं इसलिए मैं सीनियोरिटी के हिसाब से Definitely, sir. थोड़ा ज्यादा बोल प्लीज सकता सर. हूँ. मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर. I think it comes from the background that I came from. At a very young age, my grandparents, I was lucky to live in a joint family. Joint family में कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब देने के लिए होता ही है, चाहे गलत ही जवाब दे. तो जब हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे. मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे. तो एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि मैंने कहा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया. उन्होंने कहा, बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. और दूसरा, मेरे फादर, हमारे पूरे खानदान में मेरे को छोड़ के मेरे चाचा जी बस ग्रेजुएट हैं. मेरे एक दूसरे चाचा जी थे जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे. तो जब वो 7वीं बार फेल हुए तो उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स में 9वीं क्लास में प्रमोट कर दिया था. नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं. तो मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि मैं फेल हो गया था किसी सब्जेक्ट में, तो उन्होंने मुझे पार्टी दी मेरे फादर ने. मैंने कहा, पार्टी क्यों दे रहे हो? कहते तू फेल हो गया. मैंने कहा तो? कहता तो इसलिए याद रखना कि जिंदगी में फेल हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टी जरूर करना. एंड रिमेंबर, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. इवेंट फेल होता है, पर्सन थोड़ा फेल होता है. तो जब पिताजी ही सिखा दें, जब एक 12-15 साल के बेटे को उसका पिताजी सिखा दें कि बेटा फेलियर से डरना नहीं, तो फिर क्या मतलब? फिर तो चेतन जी, फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. सर थैंक यू, मैंने आज सीख लिया. एंड ऋषभ आल्सो हैज लर्नड. आई थिंक यू आल्सो लर्नड. ऋषभ, कंतारा 2 will happen? पता नहीं. Yes, it will happen. देखते. I am making the prediction, and I can also make the prediction if this was 400 crores. वही तो देखते हैं. बोलना जल्दी है, but it's not about the collections, right? What is, obviously you never could have expected this kind of success. Where do you want, what do you want in life? And where do you see yourself now? And how is this huge success, सर पे आता है? Like, does it come to the head? How do you handle it? 2 चीजें नहीं है, एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट. जो ये सक्सेस के लिए काम नहीं किया था मैं, सो काम के लिए काम किया. जो काम में ज्यादा मजा आता है मुझे. तो कांतारा कैसे शुरू किया, मेरा अगला पिक्चर भी वैसे ही शुरू करता हूं मैं. जो ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज है ये सक्सेस. सो कैसे? Why is ऐसा it? मतलब, तो इधर है तो ठीक है, तो इधर आया प्रॉब्लम हो जाएगा. एक एक्सपीरियंस मानता हूं, जस्ट दैट्स इट. लोग इतने प्यार दिया है, इतनी आशीर्वाद दिया है, और बहुत बड़ा एनर्जी आता है, और अच्छे काम करते हैं करके, दैट्स इट. उसके अलावा नॉर्मल फील है. सर आपको
कहाँ जाना है अभी? ऊंचाई की अच्छा, सोच- ओ मुझे लगा इस शो के बाद नहीं शो भैया अभी तो देखिए, जैसे जैसे आप काम करने लगते हैं वैसे वैसे आपका अपने अंदर अपना जो मापदंड है, जो अपना मेजर है, वो बढ़ता जाता है. आई एम नॉट इम्प्रेस्ड और आई डू नॉट कैरी द बर्डन ऑफ बीइंग अनुपम खेर. वो बर्डन में लेके चलता ही नहीं हूं कि मैंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, वो जीते, मैं बहुत खुश हूं उन सबके बारे में. मगर मेरे से पहले भी कितने लोग आए और मेरे से बाद भी बहुत आएंगे. आई एम वेरी हैप्पी विद हैविंग द जर्नी. मेरी जब फिल्में बहुत खराब भी होती थी, एक दिन मेरे बड़ी बुरी फिल्म को दिखाने, मेरे आई हैव टू टेल दिस स्मॉल Please, इंसिडेंट. sir. मेरी एक फिल्म थी बहुत बुरी, वो निगाहें करके एक फिल्म थी. निगाहें के फाइनल रिलीज से 2 दिन पहले उसके प्रोड्यूसर ने मेरे पास ब्लू लेबल की बोतल भेजी और बोले वाह. तो मुझे लगा मैंने शायद अच्छी एक्टिंग की है. तो मैंने यश चोपड़ा जी और उनके घर वालों को, पैम जी को, रेखा जी को ट्रायल पे बुला लिया. जब पिक्चर शुरू हुई तो पहले सीन को देख के मुझे लगा ये मैंने कितनी बुरी एक्टिंग की है. तो सेकंड सीन में यश जी की वाइफ कहती, डार्लिंग कार चलिए. सो आई थिंक इधर से शुरुआत हुई है. आई थिंक आई जस्ट रीच द इंटरवल पॉइंट ऑफ माई लाइफ. आई हैव सो मच टू डू, सो मच टू लर्न, सो मच टू go higher and higher, but I am not dependent on the success. I am enjoying the journey, and that's what we all need to do. We get too bogged down by it, and we are also in the world of social media today, जहां पर आपको बार बार आपके फेलियर का एहसास कराया जाता है कि मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या मेरे 50 फेसबुक फ्रेंड्स हैं. तो बार बार आप, मैडम कहां जा रही हैं? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आपको भी जाना है? अच्छा. तो आई थिंक लाइफ इज टू हैव, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो मेनी थिंग. आई लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. आई एम एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. मेरे लिए वो ऑप्टिमिज्म की एक परिभाषा है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे. कि दिन में अगर 12:30 बजे हैं तो 2 बार तो बजेंगे ही बजेंगे. That's right. Rishabh, since this is a news channel, people will really actually love to know this. Maybe you don't want to say yes or no, but what percentage chance of Kantara 2? People love that film, so they want more. यार अभी 2 तारीख को हम तुड़ू में भी रिलीज कर रहे हैं. सर अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है. Okay. हम लोग पहले में कन्नड़ा में किया, जो एक कोस्टल कर्नाटका का एक कल्चर रूटेड स्टोरी है. ये पहले कन्नड़ा में आना चाहिए, एक थॉट था मेरा. रिलीज किए. रिलीज करने के बाद जो वर्ड ऑफ माउथ इतना स्प्रेड हुआ, 2 हफ्ते से पूरे पिक्चर डब करके हम दूसरे लैंग्वेज में रिलीज किए. उसके बाद आओ, मुझे तो लैंग्वेज इश्यू था, तो ऐसे बीवी बोली तो कॉन्फिडेंस से जाके इंटरव्यू दे दो, कुछ नहीं होता करके. ठीक है, आया मैं, अभी तक वही काम चल रहा है. तो कांतारा के बारे में सोच रहा हूँ, कांतारा 2 के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं. Okay. But you think it has potential to be carried वही forward? तो उधर ही आ रहे हैं ना आप. हाँ. Okay. क्यों उधर ही आ रहे हैं आप? Sir, अब मेरा काम Okay, है. can I ask him a question? Sure. Just how many days did you finish the film in? सर राइटिंग से रिलीज तक नहीं, shooting dates. 1 ईयर. लास्ट सितंबर शूटिंग शुरू किया, इस सितंबर 30th रिलीज किया हम लोगों ने. और इसका सबसे मुश्किल एंगल क्या था इस फिल्म की शूटिंग का? मतलब एक्टिंग डायरेक्शन दोनों करने, शूटिंग करने समय में मुझे कुछ वैसा नहीं सोचा सर मैं. लेकिन शूट होके रिलीज हो गया तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे, क्या चैलेंजेस क्या था. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, ओ अच्छा ये थोड़ा मुश्किल था, ये सोचा नहीं मैं, काम करके आया करके. लेकिन हम लोग 96 डेज शूट किए. इसमें कम से कम 50-55 डेज हम लोग 18 आवर्स काम किए, जो पूरे रात. सो Exactly. ये क्या है ना, 20 दिन का शेड्यूल डालते, एक क्रू आता है 100-150 लोग. इसमें 5-6 डायरेक्शन डिपार्टमेंट एसोसिएट डायरेक्टर भाग गए बीच में. और हर शेड्यूल में जो उतना, मतलब उन लोगों को उतना मुश्किल होता था काम करने के लिए. हर शेड्यूल में कम से कम 20-25 मेंबर्स जो भाग जाते थे, वापस नहीं आते थे ना. ये लोग आते तो ऐसा था, मतलब पूरे फॉरेस्ट के अंदर शूट कर रहे थे हम लोग. लेकिन वो सोचा नहीं, ये करना है तो करना है बस. सो इसलिए खत्म करा. And
are you open to, because it's going to happen, अब होने वाला है. एंड डेफिनेटली वो 2 का अभी सोचा नहीं, नहीं मैं कंतरा 2 नहीं बोलूंगा. हो गया वो. यू आर वेरी गुड डिप्लोमैट. ये भी वाइफ ने सिखा के भेजा है. बिल्कुल नहीं बोलना 2 के बारे में. नहीं तो रात भर प्रोड्यूसर के फोन आएंगे, सर इस बार हमारे साथ बना लो. आई वांट टू आस्क यू, you open to Hindi cinema doing as an actor, because you're multiple things, of course, as an actor, Hindi cinema and OTT platforms. Are you open to those? नो मुझे कन्नड़ा फिल्म करना है जो मैं क्योंकि मुझे एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर का एक प्लेटफॉर्म दिया है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री. एंड कन्नड़ा लोग मुझे, आज मैं इधर हूँ, कांतारा को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, कांतारा को बन सका मैं क्योंकि वो कन्नड़ा लोग और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से. सो इसलिए मुझे कन्नड़ा फिल्म्स करना है. अगर अभी हिंदी में और दूसरा भाषा में जो लोगों को पसंद आया उधर भी रीच होता है तो मैं डब करके उनका लैंग्वेज में भी लेके आके, वैसा तो अभी वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मतलब लोग हर रीजनल कंटेंट को ऐसा ही ले रहे हैं. सो मैं किधर से आया हूँ, मैं वो मेरा कर्म भूमि है, मैं उधर से ही काम करना. पर अगर कोई एक्टर कन्नड़ा फिल्म करना चाहता है तो कर डेफिनेटली सकता सर, है ना? डेफिनेटली सर. हैं तो You have done a few Telugu films. I have done all the languages film English आपने इतनी except You for can do Kannada. anything, sir. I'm a big fan of you. Wonderful. Thank you. But I'm very proud of your thought process. Wonderful. How about OTT platforms for you? Yeah, I'm open to everything. मैं चूजी नहीं हूं, मैंने तो सब कुछ करना चाहिए. मेरे को लगता है काम से ही काम मिलता है. काम करते रहना चाहिए बस. बिकॉज अगर आप घर पे बैठे हैं, चूजी हैं, तो दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है आजकल. ऐसे लोग भूलते हैं, ऐसे लोग. देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन ओटीटी प्लेटफॉर्म. I do plays, I do everything. It's very exciting. मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा आज टाइम्स नाउ के इस फंक्शन में अपनी फिल्मों के बारे में बात कर रहा है. इतना मौका कितने लोगों को मिलता है. और मैं भगवान को कहूं ना मुझे नहीं करनी फिल्में, मुझे नहीं करना ओटीटी, मुझे सब कुछ करना है जी, सब कुछ करना है. हाँ. The first time I met you, I was 15 years ago in a lift. And मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछा था, सर मेरे को आप पहले ये सिखाओ कि आप इतना काम कैसे करते हो, क्योंकि मैं तो अभी से थक गया. एंड यू सेड तू पागल हो गया है. आपको पता, मैंने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कॉन्शियसली पिछले 32 साल से नहीं किया है. मैं कभी, आप मेरे शब्दों में, मेरे वाक्यों में नहीं सुनोगे मैं बोर हो गया हूं या मेरा मूड नहीं है. ये दोनों शब्द मेरी डिक्शनरी, मेरी लाइफ की डिक्शनरी में है ही नहीं. और जब मुझे वो रातें याद आती हैं जब मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था बैंड्रा में और मैं काम नहीं होता था. मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम खाना खाने जाते थे किसी ढाबे में और सिर्फ 3 रुपए होते थे. आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी, बट मेरा भाई और मैं, हम एक दाल और 2 रोटी मंगाते थे. मुझे वो दिन याद आते हैं जब गर्मी में पंखा नहीं होता था. तब मैं भगवान से एक ही चीज कहता था, भगवान जिस दिन आप मुझे काम दोगे मैं कभी काम के लिए कंप्लेंट नहीं करूंगा. मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता हूं, बिकॉज कितने लोगों को ये मौका मिलता है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन वर्किंग. हाउ कैन आई से ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा. बट ऑन समथिंग व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, जब मैं कश्मीर फाइल्स कर रहा था, आई एम कमिंग बैक टू इट बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म इन माई लाइफ, बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. मैंने कश्मीर फाइल में जितनी भी एक्टिंग की है उसमें आत्मा से एक्टिंग की है. कोई क्राफ्ट नहीं इस्तेमाल किया, कोई मतलब स्टेनिस्लावस की मेथड एक्टिंग ये नहीं. क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उन 5 लाख कश्मीरी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनको घर से निकाल दिया गया था. और फिर मुझे लगता था कि मैं तो सिर्फ सीन करके, रो के, परेशान होकर सीन करता था और फिर अपनी गाड़ी में बैठता था, एयर कंडीशन गाड़ी में, और अपने होटल में मैं नहाता था शावर से, सूप पीता था और सो जाता था. लेकिन जिसका मैं रोल कर रहा था वो टेंट में बैठा था, उसके पास ना 5 स्टार होटल की गाड़ी थी ना कुछ थी. तो दैट इज व्हाट व्हाई कश्मीर फाइल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, बिकॉज इट चेंज्ड द थॉट प्रोसेस. अब वो उनके वो वुंड तो हील नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब लोग उनको गले लगाते हैं, कहते हैं यार मुझे तेरी कहानी पता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है. Definitely. You know, last question since we are out of time now. Both of you talk a lot. दोनों ने अपने जर्नी के बारे में, प्रोसेस के बारे में कहा कि मुझे काम करने में मजा आता है, काम अच्छा लगता है. इवन तो आपकी फिल्में hundreds of crores में मेजर हो रही हैं,
ऐसे लगता है कि पैसे के लाइक इवन यू सेड मुझे कन्नड़ा ही करना है, मुझे हिंदी में नहीं आना, ये नहीं सोच तो रहे आप ही बोल रहे कन्नड़ा इतना कमा रहे हैं, इतना कलेक्शन चल रहा है, कलेक्शन भी तो कर क्या फर्क पड़ता है? So my question is, how do you see money? Because a lot of people, money is a big part of life. How do you see money? Does it make you happy? Is it something you care for? पैसा क्या है आपके लिए? I'll give Rishabh the first chance and then I'll give you the last word. सबको चाहिए मनी, मतलब और एक बड़ा बजट का और एक अच्छे कहानी बताना है तो मनी तो चाहिए, पैसा चाहिए सब लोगों को। और लाइफ के लिए कितना चाहिए उतना मिले तो बस, वो लाइफ मेजरमेंट कितना बढ़ता जा रहा है वो तो बता नहीं सकते हम लोग। Okay. सर आप पैसे को कैसे देखते हैं? When I was a nobody, money meant a lot to me because पता ही नहीं था, हमारे पूरे खानदान में 100 साल में किसी ने 10,000 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। तब मुझे 10,000 रुपए मिले थे, रमेश बहल जी ने दिए थे एक फिल्म के लिए, जवानी फिल्म के लिए, 10,000 रुपए साथ में कैश। मैंने जितना एंजॉय उस 10,000 रुपए को किया है उतना मैंने किसी पैसे को नहीं किया है। अभी मुझे 7-8 साल पहले लगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। यू विल नॉट बिलीव, आई हैव डिसाइडेड नेवर टू बाय अ हाउस। आई लिव इन अ रेंटेड हाउस एंड इट मेक्स मी सो लिबरेटेड, इट मेक्स मी सो हैप्पी। बस ये है, एक गाड़ी चाहिए जो मुझे मेहनत से मिली है, बट अदरवाइज मनी का क्या कर सकते हैं। बट इफ आई एम वर्किंग हार्ड देन आई विल से भैया ये पिक्चरें चली हैं, इस अब मेरा रेट इतना होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माई वर्क विच गेट्स मी मनी। बट हाउ मच मनी डू यू नीड? हाउ मच? सोने की रोटी तो खा नहीं सकता हूं, है ना। वो किसी कोई कहते हैं ना कि मतलब जितने ज्यादा पैसे होते हैं उतनी ज्यादा दवाइयों पे भी खर्च होते हैं, और फिर सोचते हैं मैं डाइटिंग कर लूं, ये कर लूं। बट मनी इज इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू सेल्फ वर्थ, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ दैट आई हैव अर्नड दिस मनी। व्हाट यू हैव नॉट अर्नड इज ऑफ नो यूज। That's true. Rishabh ji, Anupam ji, it was an absolute joy. You shared so much about the films you made, answered every question and also opened about your personal things. Thank you guys for coming. Standing ovation for all these guys. Thank you. Thank you so much. You were very good and it was always a joy talking to you. So wonderful, whether on YouTube or whether on stage.